Students, today we are going to study about next lesson, that is natural resources. First of all, understand what are natural resources. Natural resources, as the name indicates, resources that are obtained from nature are known as natural resources. We know that Earth, it is a unique planet. Why unique? Because life is possible only on Earth. We are equipped with so many natural resources like air, water, solar energy, and our forest life, wildlife. So many biotic and abiotic components are present on Earth which make life suitable here. So today we are going to discuss about natural resources and its type and their importance. So natural resources, broadly they are classified into two types, that is exhaustible and inexhaustible. Exhaustible means which can be exhausted, means they are in limited quantity and they can be finished after some time. But inexhaustible means which are in unlimited quantity and which cannot be finished even after millions of years. For example, air, water, solar energy, like solar energy. Sun, millions of years, since millions of years it is providing us same amount of heat and light energy. And still about 200 million years तक वो वैसा ही रहने वाला है. तो it means it is a inexhaustible source of energy. Now exhaustible resources जो हैं they are again classified into two types, that is renewable and non-renewable. Renewable means which can be renewed, which can be produced again, which can be produced continuously. They are known as renewable. For example, soil, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, दे कैन बी रिन्यूड, है ना, कि सॉइल है बनती जा रही है, हमेशा बनती रहती है. फॉरेस्ट बना सकते हैं हम, वी कैन प्लांट ट्रीज, वी कैन प्लांट एंड फॉरेस्ट वी कैन मेक. और वाइल्ड लाइफ, रिप्रोडक्शन, थ्रू रिप्रोडक्शन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म दे आर मेंटेनिंग देयर स्पीशीज. सो इट मीन्स दे आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो नॉन रिन्यूएबल मीन्स दे कैनॉट बी रिन्यूड, कि वंस दे आर फिनिश्ड दे विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म अगेन. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, वी आर यूजिंग अ नंबर ऑफ मिनरल्स इन आवर डेली लाइफ. मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, स्टोन्स हैं, जेम्स हैं, सो मैनी थिंग्स दैट वी आर यूजिंग. इफ दे आर फिनिश्ड वंस, सो दे विल नॉट बी फॉर्म अगेन. एंड नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल की हम देख रहे हैं कि टुडे द वर्ल्ड इज फेसिंग दैट क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, है ना, ड्यू टू दैट कि जो जितना भी कोल, पेट्रोलियम वी आर यूजिंग इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं. एंड इट इज़ सेड दैट कि कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी. तो दैट्स वाई पीपल आर गेटिंग अवेयर एंड नाउ दे आर यूजिंग battery cars and all, so that this coal, petroleum, diesel, they can be preserved for future. So fossil fuels, they are non-renewable source of energy. It means we form biosphere, which is a combination of biotic and abiotic components. Biotic means all living organisms, living beings, they fall under the category of biotic components, and all non-living beings, they fall under the category of abiotic components. Like कि बायोटिक में क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर में जितनी भी प्लांट्स, एनिमल्स, दे फॉल अंडर, दे फॉर्म बायोस्फीयर. एंड इट इज मेड अप ऑफ लिथोस्फीयर, दैट इज लैंड, हाइड्रोस्फीयर, वाटर एंड एटमोसफियर, एयर. मीन्स जब ये सारे कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं, देन ओनली सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज पॉसिबल. कि वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट एंड वी totally depend on natural resources. First of all, we are going to study about the
most important natural resource, that is air. What is air? It is a mixture of gases. Along with it, it contains some amount of water vapor and dust particles. So many gases are present in different ratios in air, like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium. These are present in air. Now, can you imagine a single moment without air? No, we can't. Not even a single living being it can survive without air. So you can understand how important is the air, or what role does it plays in our life. So air, it forms our atmosphere. Now what is the role of atmosphere? So atmosphere, it also plays an important role in our survival. First of all, it protects us from harmful radiations. How? Ki you might be knowing that ki we have a ozone layer. Ki ozone layer hai, ozone, it is a allotrope of oxygen and it protects us from harmful radiation. It form a shield or blanket around earth, so that the harmful radiations of sun cannot reach up to us. So in this way, it protects us from harmful UV and IR radiations. Secondly, it maintains temperature of earth. कि डे और नाइट के टाइम पे टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखना, मेंटेन करना, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर का काम है. एंड इट इज़ डन बाय एटमॉस्फेयर ओनली. कि डे या नाइट इट remains, the temperature remains at optimum. Next, it helps in the formation of clouds. कि जो clouds form होते हैं, evaporation process, it all happens due to air only, है ना. और उसके साथ साथ clouds form होने के साथ it brings rain होगी, then only we can get water, which is essential for plants and animals. So it means air or atmosphere, it plays a vital role in our survival. You can see that movement of wind or direction of wind. In first case, you can see the condition of daytime. It is the condition of daytime कि when sea water it gets heated up, and here it is cool air, it move from sea to land, because it moves from higher pressure to lower pressure, because here a low pressure zone is created. So air, it moves from cool air to warm air and it rises upward, while in night the direction is reverse, totally reverse हो जाती है direction, and it moves from up to down, that is from land to sea water. It is because land, it get heated faster than water. कि लैंड जो है जल्दी हीट अप हो जाती है और वाटर इट टेक्स टाइम टू गेट हीटेड अप. एंड दिस इज द रीजन व्हाई एयर अबव सी remains comparatively cool. As you have experienced कि in coastal areas always there is cool air. Cool air होती रहती है, उसका रीज़न जो है वो यही है. And during night reverse flow of air occurs. So in that condition we know that कि land it gets cooled down rapidly, कि heat up भी जल्दी हो जाती है और cool भी जल्दी हो जाती है. एंड एयर ओवर इट बिकम्स कूलर, कि उसके ऊपर की जो एयर है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी. एंड सी वाटर इट गेट्स कूल्ड स्लोली, देयरफॉर एयर अबव इट इन हॉटर विथ लोअर एयर प्रेशर, तो वहाँ का जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा. एंड देयरफॉर कूलर एयर इज प्रेजेंट ओवर लैंड, मूव टुवर्ड्स द सी ड्यूरिंग नाइट कंडीशन. So this is the direction of wind during day and night. Next comes rain. So students, rainfall, it is very much important for nature and it is very important natural resource कि जितनी भी हमारा survival है it depend on rain only. भले वो plants हो, human beings हो, animals हो, they all depend directly or indirectly on rain only. कि rain नहीं होगी तो वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो क्रॉप नहीं होगी, फूड नहीं होगा,
and if food is not there then we will not be there. Therefore rain is a important natural resource for us. तो ये जो रेनफॉल है इसका सिस्टम कैसे होता है एंड हाउ डज रेन ऑकर्स, कि आप सबने बहुत सिंपल टर्म में यदि देखें तो रेनफॉल या वाटर साइकिल जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, दैट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। कि जो इट मीन्स कि जो रेनफॉल है वो भी उसका जो प्रोसीजर है इट इज़ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑनली। कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, कि देखेंगे कि वाटर बॉडीज व्हेन दे गेट हीटेड अप, जब वो हीट अप हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है वाटर व्हेन इट गेट्स हीटेड इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, है ना, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट वेपर्स मिक्स्ड इन एयर, और जो हॉट एयर है इट राइजेज अपवर्ड। हमेशा आपको पता है कि लाइट होती है, लाइट वेट होती है हॉट एयर, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो अलॉन्ग विद दैट हॉट एयर वाटर वेपर ऑल्सो राइजेज अप, ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तो इसकी वजह से इट गेट कूल्स एंड एक्सपेंड, कूल होती जाती है और जो वाटर वेपर्स हैं दे एक्सपेंड इटसेल्फ एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू टेनी ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड एज लॉन्ग एज दे गेट कंडेंसिंग, जितना ज़्यादा कूल होते जाते हैं उतने ज़्यादा वो ड्रॉपलेट्स दे ग्रो बिगर एंड बिगर, बड़े बड़े होते जाते हैं एंड व्हेन दे बिकम टू लार्ज एंड हैवी तो वो नीचे आ जाते हैं एंड फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन के फॉर्म में आ जाते हैं एंड आर स्टोर्ड इन वाटर बॉडीज and again the process continues that water body is heated up. So it is the cycle that continues of rainfall. इसे आप water cycle कह लें या rainfall system कह लें, it is one and the same thing. One more thing I want to tell you people, that rainfall pattern in India it is decided by विंड पैटर्न ऑनली, कि जो विंड पैटर्न है वही हमारे यहाँ का रेनफॉल पैटर्न डिसाइड करता है। कि जैसे इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया रेन आर मोस्टली ब्रॉड बाय साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून, की जो मानसून सीजन आता है, मानसून आता है वो सबसे पहले इसी डायरेक्शन से आना स्टार्ट होता है एंड स्पेशली डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जैसे जैसे डिप्रेशन की कंडीशन आती है तो रेनफॉल आ जाती है। And the instrument that is used to measure rainfall it is known as rain gauge. rain gauge जो है, जैसे आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में आती रहती है न्यूज़ कि इतने सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, इस एरिया में इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, तो इट इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज रेन गेज। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर इन आवर लाइफ, बट even then that air is getting polluted day by day, है ना, we are whole world is facing air pollution problem. So what is air pollution, how it is caused, what is pollution, what are pollutant? So all those substances which when mixed in any natural substance and decrease its purity and quality आर नोन एज पॉल्यूटेंट। भले वो एयर पॉल्यूटेंट हो, वाटर पॉल्यूटेंट हो, सॉइल पॉल्यूटेंट हो, व्हेन एनी नेचुरल सब्सटेंस गेट मिक्सड विथ एनी हार्मफुल सब्सटेंस एंड इट्स क्वालिटी गेट अफेक्टेड, दैट दे आर नोन एज पॉल्यूटेंट एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन और पॉल्यूशन। सो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? एज आई हैव टोल्ड कि व्हेन हार्मफुल गैसेस, डस्ट आर मिक्सड इन एयर देन इट डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ एयर। कि आजकल हम जब साइंटिस्ट जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं तो यही उनका रिजल्ट आता है कि डे बाय डे क्वालिटी ऑफ प्योर एयर इज डिक्रीजिंग। वाई? बिकॉज हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दे आर गेटिंग मिक्सड इन एयर। फ्रॉम वेयर दीज हार्मफुल गैसेज कम फ्रॉम? कि नेचर में तो नहीं थी, ये होंगी भी तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, तो ये कहाँ से आए? ये पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेयर डू दे कम फ्रॉम? सो एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूटेंट दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल मीन्स कि दैट आर नेचुरली ऑकरिंग incidences like forest fire, storm, pollen grains. These are the natural incidences which result or which causes air pollution.
but even then they do not cause that much harm that is caused by man-made air pollution. Even and one more thing is that कि as you can see here कि जो natural cause हैं they are very less as compared to man-made causes of air pollution. कि man-made causes यदि हम देखें so first of all burning of fossil fuel कि आज हम देखते हैं हर everyone is using vehicle, industries are located everywhere, so but fossil fuels we are using to take energy from them, and that fossil fuel when it get burned it produces harmful gases like carbon dioxide and carbon monoxide. Next, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज. जो व्हीकल्स हम यूज़ कर रहे हैं आप देखेंगे हर डे बाय डे व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग इन योर सिटी, इन योर एरिया, इन योर कंट्री. हर जगह हम देखेंगे कि व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं. एवरीवन नीड देयर पर्सनल व्हीकल. पब्लिक ट्रांसपोर्ट नो वन वांट टू यूज़. हर किसी को अपने जगह पे जाने की इतनी जल्दी होती है कि घर में यदि 4 लोग हैं तो चारों का पर्सनल व्हीकल है. पापा का अलग, मम्मी का अलग, बच्चे का अलग. तो दैट इज़ द मेन कॉज. इट ऑल्सो बिकम अ स्टेटस सिंबल कि भाई हाँ नहीं हम क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, अपनी कार से जाएंगे. किसी की शादी में भी जाना है क्यों हम ट्रेन से जाएं, बस से जाएं. वी विल गो बाय आवर ओन व्हीकल. स्टेटस दिखेगा बट दैट स्टेटस सिंबल कॉजिंग हार्म टू नेचर. दैट वी फॉरगेट ऑलवेज. नेक्स्ट, न्यूक्लियर अटैक. कि कई जगह जो न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, न्यूक्लियर अटैक होते हैं, दे रिलीज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशंस उसमें से निकलती हैं एंड दे कॉज डिजास्टर्स इफेक्ट टू नेचर, टू एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एवरीथिंग. नेक्स्ट कम्स पेस्टिसाइड. कि एग्रीकल्चर ऑल्सो कि हर जगह केमिकल्स का यूज़ होने लगा है कि हर किसी को कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट चाहिए. तो पेस्टिसाइड इट इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स एंड दे आर यूज्ड टू किल पेस्ट बट दे ऑल्सो किल दीज along with it they kill useful microorganisms, and if animals eat it then they are also suffering from many diseases. So these are the causes of air pollution. Now what are the effect of air pollution? तो obvious सी बात है कि भाई air it means it is related to our respiratory system, it is related to our lungs. तो मेन जो इफेक्ट होगा इसका वो कहाँ होगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तो मेन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. सो मैनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. लोगों को अस्थमा हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जीज हो रही हैं. सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल इट. कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका कॉज है उसे फिनिश कर दें, ऑटोमेटिकली इट विल गेट कंट्रोल. तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात कि वी शुड रिड्यूस पॉल्यूशन. कि जो एयर पॉल्यूशन है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय स्मोक ऑफ व्हीकल्स, industries, so we should minimize the use of vehicle. We should use public transport more and more. Even if we are using personal vehicle then we should use clean fuel in that. Do you know what is clean fuel? Clean fuel like CNG है ना. आजकल बैटरी वाली कार, बैटरी वाली स्कूटी भी आ गई हैं. so that these fossil fuels भी बचेगा, साथ में it do not cause any type of pollution. And second and lastly very important point, that is planting more and more trees. कि plants जो हैं they absorb harmful gases, but if the trees are not there तो क्या हो जाएगा, the amount of carbon dioxide, monoxide, sulfur dioxide it will increase in tremendous amount and result in air pollution. उसके साथ साथ acid rain को भी बनाती है ये, है ना. तो सबसे बेटर इसका सॉल्यूशन यही है कि वी शुड मिनिमाइज पॉल्यूशन एंड मैक्सिमाइज यूज ऑफ क्लीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी एंड प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज आजकल छोटी मोटी जगह पे भी या सिटीज़ के बीच में भी इंडस्ट्रीज बना देते हैं, या इंडस्ट्रीज जहाँ हैं वहाँ पे भी रेजिडेंस बन जाता है. सो इट कॉज हार्म टू द पीपल हु आर लिविंग इन दैट एरिया. दे आर मोर प्रोन टू डिसीजेज, स्पेशली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और कैंसरस डिसीजेज. So it should be made compulsorily
दैट कि इंडस्ट्रीज दे शुड बी लोकेटेड आउटसाइड द सिटी. सिटी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है इट शुड बी फार अवे फ्रॉम city area or residential area. These are the solution of air pollution. So I hope you have understood up to here. Don't forget to like, share and subscribe this channel.